ఈరోజు కోహీర్లో జరగబోతున్న ఎన్నికలు మన భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ఎన్నికలు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేక హామీలు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చింది. ఏమన్నా ఒక్క మంచి పని జరిగిందా? కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆనాడు కేసీఆర్ గారు ఎన్నో మంచి పనులు చేశారు. తెలంగాణ తెస్తానన్నాడు, తెచ్చిపెట్టింది. 2000 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తా అంటే ఇచ్చిండు. ఆడపిల్ల పెళ్లికి 1,00,000 రూపాయలు కళ్యాణ లక్ష్మి ఇస్తా అంటే ఇచ్చిండు. మీ బిడ్డ కాన్పుకు కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చిండు, 13,000 రూపాయలు ఇచ్చిండు కేసీఆర్ గారు. ఇదే కోహీర్లో మంచినీళ్ళకి ఎంతో ఇబ్బంది ఉండే. కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం వచ్చాక మా ఎమ్మెల్యే మాణిక్యరావు గారు పైప్ లైన్ వేయించి ట్యాంకులు కట్టి రోజు కోహీర్లో మంచినీళ్ళు ఇప్పించిండు. మరి కాంగ్రెస్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఏమైంది? ఇప్పుడు 9 రోజులు వారంకు ఒక్కనాడు నల్లొస్తున్నది. బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఉంటేనేమో రోజు నల్ల నీళ్ళు వచ్చినాయి. కాంగ్రెస్ వచ్చింది, మళ్ళా నీళ్లు బంద్ అయిపోయింది. దవాఖాన పోతే కేసీఆర్ కిట్ బంద్ అయిపోయింది. బతుకమ్మ చీరలు బంద్ అయిపోయింది. గొర్రె పిల్లల పంపిణీ పథకం బంద్ అయిపోయింది. మా ఎస్సీలకు దళిత బంధు, అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ మా ఎస్సీలకు బంద్ అయిపోయింది. అదేవిధంగా చేప పిల్ల పంపిణీ మా ముదిరాజులకు చేప పిల్లల పంపిణీ పథకం బంద్ అయిపోయింది. पूरा काटना ही काटना है। जो केसीआर साहब बिल्डिंग बने तो उसका रिबन काटना, जो केसीआर साहब का स्कीमा है उसको काटना। नया तो कुछ दिया नहीं। केसीआर साहब बने हैं तो बिल्डिंग का रिबन काटना, केसीआर साहब का जो स्कीम था ना वो स्कीमों को काटना। दवाखाने में केसीआर किट बंद कर दो, रमजान का तोहफा काट दो, बच्चों को फॉरेन जाके पढ़ाने का ओवरसीज स्कॉलरशिप है काट दो, किसानों को रईतु बंधु काट दो। किसानों को अच्छा यूरिया मिलता था, रेवंत रेड्डी आने के बाद मिल रहा। अम्मा यूरिया దొరుకుతుందా? మున్పటి లెక్క మంచినీళ్ళు వస్తున్నాయా? మున్పటి లెక్క కోయి దవాఖానలో డాక్టర్లు ఉన్నారా? ఏం పని ఉండదు. ఇలా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక 50 పడకల ఆసుపత్రి కోహీర్లో కట్టించినాం. బ్రహ్మాండమైనటువంటి రోడ్లు వేసినాం కోహీర్లో. సబ్ స్టేషన్ లేకపోతే సబ్ స్టేషన్లు కట్టించాం. थोड़े अच्छा कामा हुआ। लेकिन कांग्रेस आने के बाद बात तो करोड़ों में बोले रेवंत रेड्डी, काम देखे तो पकौड़ों में भी नहीं बोला। 4,000 पेंशन दे तुम बेवा बूढ़ा लोगों को, मिला किसी को? एक नया पेंशन दिया रेवंत रेड्डी कांग्रेस वाले? एक भी नया पेंशन नहीं दिया। जो केसीआर साहब दे रहे थे वही 2,000 आज के दिन भी मिल रहा, लेकिन रेवंत रेड्डी कुछ नहीं किया। महिलाओं को 2,500 महीने में देके बोला, किसी को मिला? किसी को मिला 2,500? नहीं मिला। నేను నిన్న తూప్రాన్ పోయినా, ఆడొక పెంటమ్మ కలిసింది. ఏమన్నది తెలుసా పెంటమ్మ? సార్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చి 5,000 ఇచ్చిపోయింది సార్ ఇంటికి వచ్చి అన్నారు. అయ్యో నువ్వేం తీసుకున్నావు పెంటమ్మ, గట్ల ఒట్లు పెట్టుకుంటావా అని అన్నా. అంటే పెంటక్క అన్నది, నాకు గంట తెలియదా బిడ్డ? ఒట్లు పెట్టుకుంటే ముందే అన్నదట, దేవుడా దేవుడా ఉత్తుతా ఒట్లు పెట్టుకుంటున్నా అన్నదట 5,000 తీసుకున్నదట. అది తీసుకున్నాక ఏం చెప్పిందట తెలుసా కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు? ఇగో నాకు నెలకు 2,500 మహాలక్ష్మి కింద గెలవంగానే బ్యాంకులు వేస్తా అన్నాడు. ఇప్పుడు 26 నెలలు అయింది. 26 నెలలు నెలకు 2,500 అంటే 65,000 రూపాయలు రావాలి నాకు. ఇవి 5,000 ఇచ్చినవి తీసుకున్నా, ఇంకా 60,000 అడకరాపో రేవంత్ రెడ్డిని అన్నదట. ఇంకా 60 అడకరా అన్నదట. మరి మా కోయి రక్క చెల్లెలు ఏమంటారు? మనం కూడా గట్టేనా లేదా? మోసం చేసిన వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పాలన్నా వద్దా? तो क्यों डालना वोट मेरे भाई पूछ रहा हूँ कांग्रेस को। जो पानी अच्छा मिलता था वो बंद कर दिया कोहिर में, हफ्ते में 1 दिन पानी आ रहा। इसके लिए आप कांग्रेस को वोट देंगे? या कांग्रेस दवाखाने में डॉक्टरों को निकाले, केसीआर किट निकाल लिए, इसके लिए आप कांग्रेस को वोट देना है? या मुसलमानों को 4,000 करोड़ बजट देते बोल के 1,000 भी नहीं दिया, इसीलिए कांग्रेस को वोट देना क्या? इमाम मौजूद साहब का तनख्वाह बढ़ाता है बोल के धोखा दिए, जो केसीआर साहब दे रहे वही मिल रहा, इसके लिए कांग्रेस को वोट देना क्या? किसानों को 2 फसल का रईतु बंधु खत्म कर दिया। केसीआर साहब थे कोरोना में भी, कोरोना आए तो भी आपका रईतु बंधु आपको मिला नहीं मिला। लेकिन आज केसीआर आने के, आज रेवंत रेड्डी आने के बाद
कांग्रेस के हुकूमत में 2 फसल का रैतु बंधु काट दिया, इसलिए कांग्रेस को वोट देना। क्या काम किया? अरे हमारे को केसीआर साहब ने आपको शादी मुबारक दी है, शादियों को। रेवंत रेड्डी क्या बोला? साथ में 1 तोला सोना भी देता हूं। कितना सोना मिला आपको? कितने लोगों को मिला कोहिर में? क्वेश्चन करना वाले। फिर वो शादी मुबारक चेक भी कब आ रहा? बच्चे पैदाश होने के बाद आ रहा। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद चेक मिल रहा। जब केसीआर साहब थे शादी के बाद 1-2 महीने में मिलता था, आज 1-2 साल लगना शुरू हो गया। आज मैं कोहिर में देख रहा था, जिधर भी देखो कचरा दिख रहा है। रेवंत रेड्डी का मुंह से भी कचरा बात निकल रहा, कोहिर में गलियों में भी कचरा दिख रहा। यही है ना म्युनिसिपल मिनिस्टर? रेवंत रेड्डी म्युनिसिपल मिनिस्टर है। म्युनिसिपालिटियों का साफ सफाई कौन देखना? रेवंत रेड्डी देखना। वो साफ सफाई नहीं देखता, साफ बात नहीं कर सकता। उनका मुंह से भी कचरी बात निकलता, शहरों में भी किधर भी देखो कचरा दिख रहा। काम वाले नहीं है, फिर किधर भी देखो पुकारना, गालियां देना। लोगों के ऊपर गालियां देते हुए ये 2.5 साल गुजर दिया। अरे मैं पूछना चाहता हूं, गालियां देने से हमारा किसानों का पेट भरता क्या? गालियां देने से हमारा गरीब महिलाओं का पेट भरता क्या? बार बार केसीआर के ऊपर गालियां देना, केसीआर को जेल में डालता बोलना, केसीआर के ऊपर बात बोलते हुए ये 2.5 साल गुजर दिया। मैं रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं, हमारे अम्मी को 4000 पेंशन दिए तो हमारे अम्मी का पेट भरती, लेकिन केसीआर को पुकारने में, केसीआर को गालियां देने में मेरा अम्मी का पेट नहीं भरती। ये क्या है? कम से कम यूरिया भी नहीं दे सक रहे तू। केसीआर साहब के टाइम में कभी यूरिया के लिए चप्पल लाइन में नहीं लगाए, लेकिन आज कांग्रेस आने के बाद, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद यूरिया के लिए पुलिस स्टेशन में जाके लाइन में खड़ा होना पड़ रहा, चप्पल लाइन में रखना पड़ रहा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब भी केसीआर के टाइम में यूरिया के लिए कुछ तकलीफ था, आप याद करो। बच्चों का फीस रियम्बर्समेंट, आपके बच्चों जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछो, जब केसीआर साहब थे सालीना 2500 करोड़ रुपया आपके बच्चों का पढ़ाई के लिए फीस रियम्बर्समेंट देते थे। जब से रेवंत रेड्डी आया, ये 2 साल से फीस रियम्बर्समेंट बंद कर दिया। बच्चों का पढ़ाई खराब हो रहा, हमारे दलितों का, हमारे माइनॉरिटीज का, बीसीस का बच्चे आज पढ़ाई बीच में रोकना पड़ रहा। फीस रियम्बर्समेंट को बर्खास्त कर दिया। जो भी है कमाना, किसी के ऊपर पुकारना, और कुछ नहीं करता। मुख्यमंत्री क्या करना? काम के लिए सोचना। केसीआर साहब आने के बाद आपके खेती में 24 घंटा करंट दिए। केसीआर साहब आने के बाद रैतु बंधु निकाला, 2000 पेंशन दिया, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी दिया, दवाखाना को अच्छा करा, अच्छे रोड़ा भी करे केसीआर साहब। लेकिन ये रेवंत रेड्डी आने के बाद 1 पैसा भी काम नहीं हो रहा। आप सोचिए, कुछ भी नहीं करने के बाद में भी, अपने को धोखा देने के बाद में भी फिर कोई कांग्रेस को वोट डाले तो क्या बोलता रेवंत रेड्डी? अरे आप कुछ भी नहीं दिया फिर भी डाले, क्या करने का जरूरत क्या है बोल के बोलता। मैं आपसे एक ही बात बोलता हूँ, कोई बोल रहा कहते कांग्रेस को वोट डाले तो काम बनता, कांग्रेस को वोट डाले तो बिल आता। क्या तुम्हारा जागीर है क्या? तुम्हारा जेब से दे रहे क्या? तमाशा कर रहे क्या? कौन रोकता? मानिकराव साहब है, मैं हूँ। 1 रुपया भी कोई नहीं रोक सकता। हम आके बैठ के म्युनिसिपल ऑफिस में हमारा चेयरमैन के साथ बैठ के आपका काम करवाएंगे। कोई डरना नहीं, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूँ, 2.5 साल से तुम्हारे को कौन रोका? 2.5 साल से 2.5 रुपया दिया मुसलमानों को। कोहिर में 1 गज का सीसी रोड डाले, कोहिर में कुछ छोटा सा काम हुआ। 2.5 साल से तुम्हारा हुकूमत आने के बाद क्या करा? काटना, रैतु बंधु काटो, रमजान का तोहफा काटो, केसीआर किट काटो, दलितों का स्कीम काटो, बच्चों का फीस रियम्बर्समेंट काटो। स्कीमा काटना लगे, लेकिन स्कैमा करने लगे, स्कीमा काटना लगे। रेवंत रेड्डी हर महीना स्कैम निकल रहा, पैसे कमाना, दिल्ली को बेचना।
स्कैमा तो कर रहा लेकिन स्कीमा तो कुछ नहीं दे रहा। स्कीम काटना, स्कैम करना, ये है रेवंत रेड्डी का स्टाइल। फिर भी डालेंगे, सोचो ये अच्छे के लिए। अंदर కూడా మనము కారు कोटेस केसीआर గారిని గెలిపించుకోవాలి। आज पूरा तेलंगाना को मालूम हो गया 2 साल के बाद कौन सा हुकूमत आएगा, कौन सा हुकूमत आएगा, पक्का आएगा। तो ये और 3 साल इन लोगों को बचता। మా కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులకు ఇంకా 3 ఏళ్ల టైం ఉంటుంది। మీరు మా వాళ్ళని గెలిపించండి, తప్పకుండా ఈ కోహిర్లో మా కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులు ఇచ్చిన ప్రతి మాట అమలు చేయించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం, మా మాణిక్యరావు సాబ్ తీసుకుంటారు। उनके साथदार हम देंगे, जो भी वादा करे वो पूरी कराने की जिम्मेदारी मैं और మాణిక్యరావు సాబ్ लेंगे। మీరు మంచిగా ఆలోచించండి, దొంగలకు సర్దిగట్టదు, మోసం చేసినోనికి మనం బుద్ధి చెప్పాలి। ఇవాళ బూతులు మాట్లాడే రేవంత్ రెడ్డికి పోలింగ్ బూత్ లో 11వ తారీఖు నాడు మీ ఓటుతోని గుణపాఠం చెప్పాలి అని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా। टिमरी स्कूल दे ले जाने मिलकी, आपके बच्चे और बच्ची पढ़ने के लिए कोहिर में टिमरी स्कूल लगाए, जहीराबाद में टिमरी स्कूल लगाए। आपके बच्चों को उर्दू पढ़ाते हुए हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए। आज मुझे बहुत खुशी की बात है, इस साल में टिमरी स्कूल से 25 लड़के और लड़की MBBS सीट मिला, आज डॉक्टर पढ़ रहे। अरे क्या मामूली बात है। एक ऑटो ड्राइवर का बेटी को डॉक्टर सीट मिला, एक किसान का बेटे को डॉक्टर सीट मिला, तरकारी बेचने वाले को बेटी आज डॉक्टर बन रही। ये किस वजह से? केसीआर साहब की वजह से। टिमरी स्कूल केसीआर साहब लगाने से बहुत सारे इंजीनियर्स बन रहे, डॉक्टर्स बन रहे। आपके बच्चों को केसीआर साहब अच्छी तरीके से पढ़ाए। कांग्रेस ने कुछ किया? आज खाना सही नहीं देने से वो बच्चे जाके अस्पताल में शामिल हो रहे, सही खाना भी नहीं दे सक रहा। केसीआर साहब ने स्कूल लगाए, बिल्डिंग बनाए, बहुत सारे लाखों के बच्चों को पढ़ाया, लेकिन आज रेवंत रेड्डी वो कॉलेजों में स्कूलों में कम से कम खाना भी सही तरीके से नहीं दे सक रहा। ये पूरा आप जानते हैं, हर रोज अखबार में पढ़ते हैं, आप सुनते हैं, फिर भी कांग्रेस को वोट देंगे। आज बीच में MIM भी आएंगे, MIM वाले भी आके वोट पूछेंगे। मैं एक ही बात बोलता हूँ, ज्यादा नहीं बोलता हूँ। आज महाराष्ट्र में MIM क्यों बीजेपी के साथ मिला, MIM क्यों बीजेपी को सपोर्ट करके डिप्टी मेयर लिया, बीजेपी के साथ MIM जोड़ सकते? कभी हम सोच सकते? आज महाराष्ट्र में बीजेपी MIM के साथ जोड़ के वहां पर मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, डिप्टी मेयर दोनों बीच में ले लिए। मैं एक ही बात बोलता हूं, BRS पार्टी कभी भी बीजेपी के सामने हम सर झुकने के लिए तैयार नहीं है, हम सर काटने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी के साथ कभी भी हम नहीं जोड़ेंगे। बीजेपी के सामने कभी भी BRS पार्टी सर झुकेंगे नहीं। BRS सेक्युलर पार्टी है। केसीआर साहब रमजान तोहफा दिए, टिमरी स्कूल लगाए, इमाम मौजम को दुनिया में कोई नहीं दिया, केसीआर साहब ने सरकारी पैसे देके तनख्वाह दिया है। जामिया निजामिया को 11 करोड़ रुपया देके केसीआर साहब मदद कर चुके हैं। ऐसे बहुत सारे काम करें, हम आगे भी करेंगे। बस ज्यादा वक्त नहीं लेना। जहीराबाद में भी और 3 मीटिंग है। मुझे तो इतला है, मुझे तो हर सर्वे में, हर रिपोर्ट में कोहिर में BRS पार्टी जीत रही, पक्का हो गया, कोई भी नहीं रोक सकते, जीत पक्का हो गया, पक्का। कोहिर म्युनिसिपालिटी में एगरे झंडा गुलाबी झंडा कार जीत गया। या MIM भी आने दो, कांग्रेस भी आने दो, लोगों को सीधा सीधा पूरा मालूम हो गया। अन्य अर्थమైపోయింది, పాలేందో తెలిసింది, నీళ్ళేందో తెలిసింది, काम वाले कौन है, पुकारने वाले कौन हो गए। 2.5 साल में पूरा मालूम हो गया, कौन मेहनत करा, कौन काम करा, कौन पुकारना लगे, ये पूरे बात आपको समझ हो चुका है। अब पानी भी नहीं दे सके ना बहन। जब BRS से हर दिन पानी मिलता, कांग्रेस वाले आके हम आए तो हम जीते तो ही काम करते, फिर 2.5 साल से पानी क्यों नहीं दे रहे, पानी क्यों बंद हुआ? भाई पहले इसका जवाब दो। तू पानी भी नहीं दे सके,
आप म्युनिसिपल चेयरमैन को जिताइए, हर दिन पानी आने की जिम्मेदारी मैं और माणिकराव साहब लेंगे। जय तेलंगाना। कार गुर्तु के